Good morning, student. Morning, sir. Okay. Today, my related this topic, test and measurement in sports. There are the 5 tests related to the physical fitness and cardiovascular fitness and respiratory fitness. Okay, but first topic is related to the motor fitness test. There are the 7 tests, 8 tests. This topics. Number 1, 50 meter standing running. Standing start और स्टार्ट के साथ रनिंग भी है 50 मीटर की. 600 मीटर रन या वॉक. ओके. सिट एंड रिच टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, पुश अप बॉयज टेस्ट, मॉडिफाई पुश अप गर्ल्स टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एजिलिटी, 4x10 मीटर शटल रन. ओके, ये आपका टॉपिक है. और इसमें जो हमने कल जो पढ़ा वो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है और 600 रन वॉक. थर्ड इज सिट एंड रिच टेस्ट. सिट एंड रिच टेस्ट मेजर टू द फ्लेक्सिबल ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट. आपका पेट वाला जो हिस्सा है, एब्डोमिनल पार्ट जो ट्रंक पार्ट है, उसको जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने का है. उसमें क्या है कि एक टेबल आपके सामने छोटी सी स्टूल टाइप में होगा और उसमें मार्किंग बनी होगी. देखिए लाइक दैट द मार्किंग. अगर सपोज आप बैठे हैं 1 2 3 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 फीट या इंचेस आप बैठेंगे, आप दोनों हाथ ऊपर लेंगे और आगे धीरे धीरे लेते जाएंगे. जहाँ तक आपको बिल्कुल कंफर्ट है, नी बैंड नहीं होनी चाहिए, नी बैंड नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक आपका हाथ जाएगा वहाँ तक आपके पास वहाँ पे अपने नंबर नोट कर लीजिए या टीचर्स नोट कर लेंगे आपके. ठीक है, तो उसके द्वारा उस फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, sit and reach test. The sit and reach test was first propounded by Well and Dillon in the 1952. This test widely used as a normal test to assess flexibility. Okay? Purpose क्या है? What is the purpose? Purpose: the sit and reach test is a significant test to measure the flexibility of hip region, including the lower and back hamstring muscles. Generally, it is noted that owing to the lack of flexibility in the regions, there is a greater risk of the injury. It is also interrelated with the lumbar lordosis and the lower back pain. Equipment requirements required: sit and reach box or a mark seat. Ruler and the box may be used in the which is the 0 marks can be adjusted the each individual according to their sitting reach level because there is a variation of length and individual's arm and leg. ओके, ये आपकी जो है इक्विपमेंट सेंस से रिलेटेड. और पर्पस क्या है आपका? द सिट एंड रिच टेस्ट इज द सिग्निफिकेंट टेस्ट मेजर टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हिप रीजन एंड ट्रंक एंड द लोअर बैक हेमस्ट्रिंग मसल्स. Generally is noted to the owing to lack of the flexibility in the region, there is a greater risk of injuries. It is also entangled with the lumbar lordosis and the lower back pains. Okay. Next, equipment required: sit and reach box or a mark shift. Ruler and the box may be used in the which the 0 marks can be adjusted for each individual according to their sitting reach level because there is a variation of the length of individual arm and legs. Okay. इसके जो है प्रोसेसिंग क्या है, इसका तरीका क्या है करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल शूज एंड सॉक्स should be removed.
Then sit down on the floor with leg stretched out straight ahead. The sole of the foot should be kept flat against. जो सामने बॉक्स रखेंगे हम लोग, उसमें अपने फिट को जो है प्रॉपर तरीके से फिट करना है। नीज बैंड नहीं होगी, दोनों हाथ सीधे रहेंगे और अपने आप को आगे तक ले आना है जहाँ तक वो इंच टेप आपके फिंगर जाएंगे इंच टेप तक। वहाँ लिख के बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में देखिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शूज एंड सॉक्स शुड बी रिमूव्ड, देन सिट डाउन ऑन द फ्लोर with leg straight and strength ahead. The sole of the foot should be kept flat against the box. Both the knees should be locked and pressed flat to the floor. An assistant may hold the knees down. Palm should be facing downward. Hand should be on the top of each other side by side. The individuals who flexibility is to be measured. Try to extend both hands forward along the measuring line on the box as far as he can extend. His fingertip of the both hand should remain equal and at the same level. The individual who flexibility is to be measured tried to extend his both hand forward along the measuring line on the box as far as he can extend. His fingertip of the both hand should remain equal at the same level. They should not jerk or the bounce to reach maximum distance. He should not jerk on the bounce of reach maximum distance. He should hold the full reach position for 2 seconds and the score should be recorded. Generally in such test, warm up is not allotted. However, the best result can be attained after suitable warm up. In case of the sliding ruler or a mark sheet ruler, the 0 mark should be at the fingertips. It is not available of the simple marking is there, then 0 marks should be no 9 inches before the fit. अब है स्कोरिंग। इसमें क्या है कि आप लोग जो है उसमें आपका जो है जो मेजरमेंट टेप होगा वो 0 होगा और जहाँ तक हो जाएगा 1 2 3 4 इंचेस में होगा। सेंटीमीटर्स की भी लाइनिंग होगी इसमें। आप लोग जब अपने फिट को उसमें फिक्स करेंगे बॉक्स में, दोनों हाथ ऊपर ले आएंगे। आप ये घर में ही बनवा सकते हैं और मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं आप लोग। और आपकी जो है हैमस्ट्रिंग बोन, पेल्विक बोन एंड आपकी जो है स्कैपुला, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका स्टमक जो ट्रंक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको देखा जाता है कि कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो स्टूडेंट, और उसके हिसाब से जो है आपको मार्किंग मिल जाएगी। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग कैसे करेंगे हम लोग? द स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स और हाफ इंच बेस्ड ऑन द डिस्टेंस रीच बाय द फिंगर टिप ऑफ द बोथ हैंड। ओके, एडवांटेज क्या है? It is a simple test to know the flexibility. Number 2, it is an easy test to perform. Okay. Disadvantage क्या है इस टेस्ट के? This test is the good flexibility to joint, lower back and hamstring and not related to the flexibility of other joint of the body. Okay. ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजरमेंट करने का एक तरीका है और ये पेस बैटरी है जो मोटर डेवलपमेंट, जो मोटर फिटनेस को मेजरमेंट करने की एक बैटरी है, पेस बैटरी है। स्टेप बाय स्टेप चलना है और उससे आपकी मोटर फिटनेस, आपकी कितनी फिटनेस है, आप कितने फिट हैं, उसको मेज़र करता है ये टेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पार्शियल कर्व अप। इसमें क्या है पार्शियल कर्व में?
इसमें बताया था पहले पर्पस क्या है, टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड द एंड्योरेंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स. In fact, strong abdominal muscles are significant for the maintain good posture, hips alignment, and in the preventing low back pain. Low back pain, hip portion जो है, and whatever आपकी इस ट्रंक, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और कितना पेन आपका जो है, मतलब कितनी देर में पेन होगा या कितनी देर तक पेन रहेगा, उसको मेज़र करने का कि आपके वो पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इस पार्ट्स में है. लोअर जो अपर और लोअर पार्ट होते हैं, तो लोअर पार्ट की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. ये टेस्ट क्या है, अभी पिक्चर में बनी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे होगा वो. ठीक है. इक्विपमेंट फर्स्ट क्या है इसका, ए फ्लैट क्लीन एंड कुशन सरफेस. एक मैट लेंगे, योगा मैट, और रिकॉर्डिंग सीट एंड पेन. रिकॉर्डिंग सीट और पेन लेंगे आप लोग. दिस इज मैट, योगा मैट. एक मैट लगा देंगे ब्लैक कलर की, जो टेप होती है, जो हिंदी वाली टेप जो होती है, ठीक है, वो एक टेप यहाँ लगाएंगे. ठीक. जो प्लेयर होगा वो यहाँ बैठ जाएगा मैट के ऊपर, ये लेट जाएगा. फिर थोड़ा सा खड़ा होगा, उसकी हाथ यहाँ पे होंगे, ठीक है, पैर यहाँ पे बैंड हो जाएंगे. आप सिटअप लगाते हैं, अपने पैरों को बैंड करते हैं, उस तरीके से हम पैरों को बैंड कर लेंगे यहाँ पर. फिर लगेगा आपके, ठीक, सिटअप पोजीशन में होगा ये, और हाथ आपके साइड में मैट में होंगे, बिल्कुल बगल में. आप उठेंगे और जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक आप हाथ को जा सकते हैं. ये आपके हैंड है इस तरीके से. तो ये जो है कैसे हम यहाँ पे व्यक्ति प्लेयर होगा या स्टूडेंट होगा, वो लेटा हुआ है, थोड़ा टूट जाएगा. फिर आपके ऐसे बैठ के इसके हाथ जो होंगे वो आप आगे तो कितना आगे तो जाएंगे. मैं आपको जो है ग्राउंड पे ही बता दूंगा ये कैसे होगा. ये आपका पार्शियल कर्व टेस्ट है. ओके. इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिए हैं. प्रोसीजर क्या है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर इज द एक्सप्लेन्ड टू द सब्जेक्ट. आफ्टर द सब्जेक्ट ले इन द सुपाइन पोजिशन ऑन द कुशन सरफेस. जो मैट है, योगा मैट में है, उसमें वो व्यक्ति जो है, जो प्लेयर है, जो स्टूडेंट है, वो लेट जाएगा सुपाइन के पोस्ट पर. ठीक है. द नीज शुड बी फ्लेक्स्ड एंड फिट शुड बी 12 inches फ्रॉम द बटक. बोथ द फिट शुड बी स्लाइटली अपार्ट. द आर्म्स आर एक्सटेंड एंड आर rested on thighs. The head should be in the natural position. This is the starting position. Then the subject curve up with the slow controlled movement until her shoulder come off the cushion surface or mat 2 inches. Then back down again. One complete curl up is the completely every 3 seconds. These are continued until the subject feel unable to maintain the rhythmic. This should not be any pause in the up or down position. It should be a continuous position. Scoring क्या है इसकी? Scoring है record the total number of the partial curve up. Curve up should not be counted if the shoulder are not raised up by 2 inches. Okay. Advantage क्या है इसके? This test is a simple, quick to perform in require minimum equipment. A number of the subject student may be tested at a time. Okay. ये आपकी जो है स्कोरिंग है, और ये टेस्ट हम लोग जो है मोटर फिटनेस में हम लोग जो है इस टेस्ट को करते हैं. पुशअप बॉयज़. अब नेक्स्ट है पुशअप बॉयज़ और पुशअप गर्ल्स. पुशअप जो है गर्ल्स के लिए वो मॉडिफाइड है. आप पुशअप लगाते हैं. नेक्स्ट जो टेस्ट है पुशअप का है वो पैरेलल सरफेस में होगा. ठीक है, पैरेलल. और जो हम गर्ल्स जो पुशअप लगाती हैं वो क्या है, नीज को डाउन करके तब हैंड को जो है रोटेट करना है, उससे जो है वो गर्ल्स के लिए होगा. नीज डाउन रहेगी गर्ल्स की. ये मॉडिफाइड पुशअप है. मैं आपको ग्राउंड पे जब ले चलेंगे तब प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा.
पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पुशअप फॉर बॉय? टू द टेस्ट मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। पहले तो जो नीचे के लोअर पार्ट के बारे में बात हो रही थी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करना है। अब जो है कमर से ऊपर वाला पार्ट जो है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को जो है चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। ओके। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है? अ फ्लोर मैट एंड द पेपर टू रिकॉर्ड बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर एंड टोटल नंबर ऑफ पुश अप परफॉर्म्ड। ओके, इक्विपमेंट है ये। प्रोसीजर क्या है इसके? आफ्टर प्रॉपर वर्किंग अप, ओके, आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप, ask the subject the take position in push up position and toe should touch the mat floor. Hand should be shoulder width apart. The upper body and legs should be in the straight line. Okay. Elbow should be fully extended, keeping the back and the knees straight. The subject lower the upper body so that elbow may bend to 90 degree or chest may touch the mat floor. Then return back to the starting positions with the arm extended. This is the one repetitions. Okay. The same action is the repeated and the test continue until exhaustions of until the subject can be more in rhythmic. Count the total number of the push up per forward performed. Okay, these are push up for boys. अब गर्ल्स के लिए क्या है? A modified variation of the test is used for girls. Purpose the measure the upper body strength and endurance test. Okay, upper body strength and endurance test. Okay, गर्ल्स के लिए अपर बॉडी का है, सारा फोर्स जो है आपका शोल्डर पे, अपर बॉडी पे, बैक, स्पाइनल कॉर्ड पे, सामने चेस्ट पे, इन पे पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो है स्ट्रेंथ और अपर बॉडी का स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखी जाती है। इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट अ मैट, फर्स्ट सिंपल जो है योगा मैट, एंड पेपर ऑफ रिकॉर्ड द बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज द एज, जेंडर एंड टोटल नंबर ऑफ पुश अप परफॉर्म्ड। प्रोसीजर्स क्या है? आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेक स्टार्टिंग पोजीशन फॉर मॉडिफाइड पुशअप। इन अ मॉडिफाइड पुशअप positions, hand and knees should touch the mat floor. Both the hand should be shoulder width apart and elbow fully extend. The body from the knees to hip and to the shoulder should be in the straight line. While keeping the position, the subject should lower her upper body so that elbow may be bent to 90 degree. Then the subject returns back to the starting positions. This is one repetitions. The same action is the repeated and the test continue until exhaust or until she can do not more in rhythmic. Count the total number of modify, push up the record in your paper one by one and girls and boys separately. Okay. Next test is a standing broad jump. Standing broad jump, measure your lower part strength. एक बार चेक कर लेते हैं. टू मेजर टू द एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग. पावर की कितनी लेग की कितनी पावर है उसको जो है मेजर करने का एक टेस्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. और इस टेस्ट के द्वारा आप अपने लॉन्ग जंप को भी बढ़ा सकते हैं. लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते हैं. कैसे है कि एक लाइन आपको खींचनी है, लंबी लाइन होगी और आप उस पर खड़े हो जाएंगे दोनों पैरों को मिलाकर और पुश करके जितना जंप आप जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक आपको जंप करना है. तो आपकी ये लेग भी स्ट्रेंथ उसके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को भी काउंट हो जाएगी चेक करने के लिए कि आपके अंदर कितनी पावर है. और आप इसके द्वारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी लॉन्ग जंप की, लेग को स्ट्रेंथ करने की, आपकी मसल्स को पावरफुल बनाने की लेग की.
तो ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, दोनों पैरों को मिलाकर जंप लेना है, जहाँ तक आप जाएंगे वो आपका मेजरमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। मेजरमेंट करके उसको जो है काउंट अपने जो है कॉपी पेन में पेपर में लिख लेंगे। तो 1 बाय 1 करेंगे। स्टूडेंट कई सारे होते हैं, 100 स्टूडेंट है, 50 है, 30 है, उनको 1 बाय 1 कराएं और उससे आप उसकी लॉन्ग जंप की स्ट्रेंथ को और उसकी जो है लेग स्ट्रेंथ को भी आप जो है नोट कर सकते हैं कि कितनी दूर तक वो जंप कर सकता है। ज़्यादा 1 मीटर 2 मीटर तक भी हो सकता है और कई बार जो है उससे कम भी हम जंप कर सकते हैं। गर्ल्स थोड़ा कम करती हैं क्योंकि लेग की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम होती है, ठीक है उनकी। नेक्स्ट प्रोसीजर, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है? अ सैंडी लॉन्ग जंप पिट। सैंडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्श पे कूद जाओ आप लोग। फर्श पे पक्के पे नहीं करना है, छत पे नहीं करना है, उससे क्या होगा पता लग रहा है कि पैरों में पेन हो जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। फिर क्या करोगे आप? डिसेबल्ड, कहीं डिफॉर्मिटीज आ जाएगी कहीं लेग में, ये भी ध्यान, यहाँ भी ध्यान देना है आपको। तो सैंडी पिट होनी चाहिए। सैंडी का मतलब है रेतीली, ओके। वैसे भी नहीं होनी चाहिए, पता लग रहा है कि जमीन खोदती और वो दब रही है, आपको पेन हो रहा है उससे, वो भी। सैंडी का मतलब है कि थोड़ा सा नरम रहती है, सॉफ्ट रहता है, वहाँ पे जो कूदेंगे तो आप लोगों को स्पंची में महसूस होगा, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि गद्दा ले लिया, गद्दा भी नहीं करना है, वो स्लिप हो जाता है कहीं पर, वो भी नहीं है, वो भी रॉन्ग है। सैंडी पिट होनी चाहिए, ओके। बाहर आप कर सकते हैं, आउटर में या घर में बना सकते हैं आप अपने घर पे। तो सैंडी लोकल लॉन्ग जंप पिट एंड मेजरिंग स्टील टेप। टेप जो है मेजरमेंट के लिए। प्रोसीजर, अ टेक ऑफ लाइन इन द मार्क ऑन द ग्राउंड, सब्जेक्ट स्टैंड just behind the takeoff line with the feet several inches apart. The subject swing, the subject में कौन है? वो पर्सन है जो उसे सेंड कर रहा है, वो सब्जेक्ट बना रखा है उन्होंने। कोई सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, कि मैं भी हो सकता हूँ, विकास भी नाम है, कोई भी राहुल भी हो सकता है, कोई विकास सैनी हो सकता है, कोई भी इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और गर्ल्स भी उस पर जो है कर सकते हैं। द सब्जेक्ट स्विंग the arms, bend the knee to take a jump, a long jump pit, ठीक है। 3 trial are given to the subject. The distance is measured from takeoff line to heel or other part of the body that towards the ground nearest to the takeoff line. All jumps are measured and the best one is recorded. The measurement is noted in feet and inches, okay. Number 2, 4 into 10 meter shuttle run. Purpose, the measuring agilities, agility to change directions. Equipment required, 2 wooden block, each block should measure 10 into 5 into 5 centimeters. Marker cone, measuring tape, stopwatch and a flat surface with the 2 lines 10 meter apart. Procedure क्या है? Mark 2 parallel lines 3 meter in length 10 meters apart using marking tape or cones, considering one line as starting line. The subject stand a standing line or points. The 2 wooden blocks are placed in the edge of the other line. On the single go, the subject run to the wooden block, lift and block, return to the starting line and places the block behind a line. Then the subject return to the second block, lift it and then run across the standing line on the way back. 2 trials are given, scoring, record the best time to complete the test in the second to the nearest decimal places. ओके बच्चों, ये आपकी क्या है? ये आपके टेस्टेस हैं और ये कंप्लीट हो गए आपके टेस्टेस। देयर आर 7 टेस्टेस, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और एजिलिटी फॉर द 4 into 100 शटल रन। शटल रन आप समझ गए, सामने जो है एक ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे, यहाँ प्लेयर है, वो दौड़ेगा यहाँ से, वो सब्जेक्ट को उठा के लाएगा, फिर वो यहाँ रखेगा, फिर रनिंग करेगा, फिर वहाँ से दौड़ के आके जो है फिर उसको वहीं पे रखना है,
तो ये शटल रन में, शटल रन को हम और भी तरीके से एजिलिटी टेस्ट के रूप में कर सकते हैं। मैं आपको बोर्ड बता देता हूँ। शटल रन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने जो है ये बनाया है, यहाँ पर एक डायग्राम, यहाँ पे एक कोन रख दिया, यहाँ पे कोन रख दिया, यहाँ पे कोन रख दिया, यहाँ पे कोन दिया, यहाँ पे कोन, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा हुआ है, प्लेयर खड़ा हुआ, यहाँ से दौड़ेगा, दौड़ने के बाद वो इधर जाएगा फर्स्ट, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाकर यहाँ छूकर, यहाँ कोन रखा हुआ है, इनको टच करना है, फिर वापस इस जगह पे आएगा। और हम इसमें जो है टाइमिंग को काउंट कर लेंगे कि कौन सबसे कम समय लेगा। जो सबसे कम समय लेगा वो उतना ही फिट है, वो इतना एजाइल है, उतना ही एजिलिटी है, उतना ही फुर्तीला है वो, ठीक है। तो सो कंप्लीट माय टुडे टॉपिक द मोटर फिटनेस टेस्ट। नेक्स्ट मैं आपको जो है दूसरे टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा क्या है, और आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप लिखिए कि व्हाट इज अ 50 मीटर डैश, या उससे रिलेटेड जो है दो टॉपिक आप जरूर करके लाएंगे, या 600 मीटर के या 50 मीटर के या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के। इनको एक्सप्लेन करके लाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। ये जरूर करना है आप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को एक्सप्लेन करना है। कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ 50 स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करके लाएंगे, और एक आप उसमें जो है पुशअप का या 600 मीटर का या 50 मीटर डैश का या एजिलिटी टेस्ट 4x10 वाला, ये आप लोग करके अपनी कॉपी में उनमें से कोई 2 या 3 आप जरूर करके लाएंगे। मैं आपको सैटरडे को चेक करूंगा कॉपी। ओके बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। टुडे माय टॉपिक रिलेटेड टू टेस्ट एंड मेजरमेंट कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।